senior member of the Central Waqf Council, Janab Hanif Ali Saab. We are here for the routine annual visit and inspection of the State Waqf Board for 4 days. Yesterday, we have had a meeting with the Honorable Chairman of the Waqf Board, CEO and the learned members of the Waqf Board. And we have expressed our apprehensions regarding the present functioning of the Telangana State Waqf Board before the board and before the Honorable Chairman. We are taking earnest efforts to get an appointment with the Chief Secretary, Secretary of Waqf and the Honorable Minister for Home Affairs to discuss these pertinent issues. All those issues prevailing there in Telangana State and Hyderabad is rightly expressed by the senior member, my colleague Mr. Hanif Ali Saab. So I would like to mention something regarding the present functioning of the Ministry of Minority Affairs, Government of India and the Central Waqf Council. The Hyderabad and Telangana being a Muslim dominated area, I feel that it is the bounden duty of the Central Waqf Council members for and on behalf of the Ministry of Minority Affairs and the Government of India to explain or express what the Modi government is doing for the betterment and benefit of the Muslim community of India. As we used to say, we have lost nearly 40% of the Waqf property existed in India at the time of independence. The remaining is only 60%, somewhat 60%. And this government is very particular about preserving and protecting the existing property. For that, earnest efforts were there from the part of the government, and we have adopted certain scientific measures for the same. As you all are rightly aware, the GPS mapping of the Waqf properties all over the Union of India is going on under the VAMC project. The 100% funding is from the Government of India. So the very intention of the Central Waqf Council behind the GPS mapping is to consolidate the data including the plan of the Waqf properties which is at present available in India and registered with the State Waqf Board. As far as the state of Telangana is concerned, this duty is entrusted to IIT Roorkee. To a certain extent they have started the work, but due to and the second one is the computerization of the records pertaining to Waqf properties. As contemplated in the provisions concerned of the Waqf Act, all the state and UT Waqf boards are expected to maintain Government of India. All those documents all over the Union of India is getting computerized for release from the Government of India. And as rightly pointed out by the learned senior member, we are taking earnest initiatives for strengthening the state Waqf boards. As we all know, as per the provision, as far as the Waqf Act is concerned, the functionary bodies are the state Waqf boards. ये उत्तर प्रदेश का तो वक़्फ़ की नॉलेज में भी नहीं, तो वहाँ की भी विजिट किए हैं और कुशालना कमान मौलाली के बाद भी अब बाहर बोर्ड के कंस्ट्रक्शन चालू होता है। उसी तरीके से मौलाली के 232 एकड़ फिर शायद 32 एकड़ भी बचे या नहीं बचे पता नहीं, अरे पहाड़ लगा है। अब पहाड़ की भी प्लाटिंग हो रही है, पहाड़ की तोड़कर कुशालना की कमान के बाद भी प्लाटिंग चल रही है, मकान बन रहे हैं आज। और वहाँ का जो मुतवली है मौलाली का जहीर अहमद, वो पूरी प्रॉपर्टी बेचा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उसकी इमीडिएट सस्पेंड करे, तो आज तक वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है। तो ये चीज़ों को भी वक्फ बोर्ड की देखने की जरूरत है। और सबसे अहम बात ये है कि वहाँ पर आज तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में आज भी 10 डिस्ट्रिक्ट काउंटिंग में चल रहे हैं, सिर्फ 10 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से होता रहा तो मैं नहीं समझता हूं जो बची भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो 20% भी नहीं है, वो भी शायद तंजीम में खत्म हो जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट आप सबको मालूम है 2017 से रिकॉर्ड बुक सील करके रखा है, जबकि
वक्फ एक्ट के हिसाब से किसी भी रियासती हुकूमत को ये हक नहीं है कि वहां का रिकॉर्ड सील कर सके या रिकॉर्ड की तरक्की कर सके। तो ये भी चीज तेलंगाना स्टेट वक्फ का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट टीआरएस की है और टीआरएस की गवर्नमेंट होने के बोर्ड भी टीआरएस की तरफ से बना हुआ है, तो ये काम मुमकिन नहीं हो सक रहा है। तो हम इस जिम्मन में कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 33 इंस्पेक्टर होना चाहिए, 33 इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे स्टाफ होना चाहिए और 33 एक कम से कम एक सिंगल रूम से उनका ऑफिस होना चाहिए, तभी जाकर वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन हो सकेगा और जो वक्फ प्रॉपर्टीज है बच सकेगी। कल कुछ कांग्रेस के भी लीडर्स आए थे, एहतजाज कर रहे थे, वो भी रिप्रेजेंटेशन की है। मस्जिद अल्मास तकरीबन 400 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम रिपोर्ट हमारे तमाम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर साथ हैं, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद ये हमारी भी कोशिश होगी, क्योंकि हमारा ये एनुअल विजिट होता है और तेलंगाना स्टेट कोई भी स्टेट वक्फ बोर्ड जो होता है उसके साथ सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन के साथ काम करना चाहता है। तो उसी तरीके से हम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि स्टाफ के लिए बार बार रेजोल्यूशन पास हुआ है और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड स्टाफ मिल रहा है, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को जो स्टाफ नहीं मिल रहा है वो गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये वादा होता है कि हम अक़लियतों के मसीहा हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, आज मुसलमानों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है तेलंगाना के राज्य में, टीआरएस की गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सील हो रहा है, एम्प्लॉयज का इजाफा नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड की बर्बादी हो रही है, लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। तो मैं हुकूमत से चाहूँगा कि इमीडिएटली जो स्टाफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे और जो रिकॉर्ड रूम सील है वो इमीडिएट करे। मैं पीओ नौशाद साहब से बिना सोचे ये क्लैरिफिकेशन नहीं था, वो बिना सोचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ नहीं, और एक बात आई थी उसमें ये था कि मॉर्गेज करने की बात आ रही थी, प्रॉपर्टी देखिए हम प्रो स्टेट वक्फ बोर्ड का इलाकी है और स्टेट वक्फ बोर्ड एज ए श्योरिटी रहता है, नॉट मॉर्गेज। श्योरिटी जो स्टेट वक्फ बोर्ड की अगर वो अदा नहीं करते हैं तो स्टेट वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेके अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ आप ईज करने की कोशिश कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, जिससे वो नवाज को अलग है, ये ऑडिटिंग जो है वक्फ बोर्ड की वो एक बहुत ही समझो गंभीर और सोचने का विषय है। 5000 से ज्यादा जिन दरगाह की आमदनी है मुतवल्लियों की, वो ईयरली ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं और 50,000 रुपए के ऊपर जो ऑडिटिंग होना है वो गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड ऑडिटर होता है उसके जरिए से होना, वो भी नहीं हो रही है। और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की भी ऑडिटिंग बराबर नहीं चल रही है, वो हमारे सामने है। तो ये एक बहुत ही समझो सोचने का विषय है और हमको सोचने की जरूरत है और ये हम रिपोर्ट में ये भी देखेंगे। उससे हटके मेजर जो ऑप्शन होते हैं जैसा जहांगीर की दरगाह है और खालिद शहीद है और आपके बड़ा पहाड़ है, तो करोड़ों रुपए में जिनका आधार होता है, तो वो भी समझो ऑडिट के सामने अब तक नहीं आया है। तो ये भी चीज आने की जरूरत है। और अभी हम कल का जो मीटिंग होने के बाद हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए से हमने यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज रिक्रूट किए थे, जिसमें 8 एम्प्लॉयज का तबादला हुआ है और 2 एम्प्लॉयज अभी प्रोसेस में है। तो उनकी भी हमने मीटिंग ली और उनसे भी पूरी रिपोर्ट तलब की। और आज मौला अली हम गए थे, जहां पर 35 एकड़ पर
मीर महमूद साहब के पहाड़ी के तहत वो इंस्टीट्यूशन के तहत जो प्रॉपर्टी है 35 एकड़, उस पर कोई टीआरएस का लीडर सूर्यनारायण रेड्डी कब्जा किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में भी और हाईकोर्ट में भी डिक्लेयर हो चुकी है कि वह प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टेटस को लेने पर वहां पर लोकल जो एमएलए है हनुमत राव, उसकी मदद से वहां पर आज भी हम देख के आए इंस्पेक्शन में बहुत हंगामा भी हुआ वहां पर, क्योंकि पूरा गेट लॉक करके पूरा पर्दा घेर के अंदर काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से हम अंदर घुसने में कामयाब हुए। स्टेटस को है हाईकोर्ट से, लेकिन काम कर रहा है। उसी तरीके से कुंदनपल्ली